Ji, now we're ready for our panel discussion. So again, I would like to request Mr. Nadeem Rehmat, the Chief Operating Officer of Farm Evo Private Limited, to moderate this session. Please welcome Mr. Nadeem Rehmat. So in the panel we have, our first panelist is Mr. Muhammad Zubair, Director Plant Operation Martin Dow Limited. Mr. Zubair manages plant operations at Martin Dow Limited with a focus on integrating emerging technologies like artificial intelligence and Internet of Things into manufacturing. Our second panelist is Mr. Rashid Murid, Head of Chambers, Sipal & Co. Mr. Rashid Murid is both a lawyer and a pharmacist, providing a critical perspective on regulatory challenges. He is well versed in navigating the complex global regulatory environment, particularly in a developing country like Pakistan. Please welcome our third panelist, Mr. Saidur Rahman, Director Technical Operation, AGP Limited. Mr. Saidur Rahman oversees technical operations at AGP Limited, focusing on supply chain integrity and cold chain management. Now, our last but not the least, Mr. Rizwan Butta, Chief Innovation Officer, Zork Pharma Tracks. As I told before, he specializes in traceability, artificial intelligence, and Internet of Things, and his expertise will shed light on how these technologies can be implemented in Pakistan. Over to you, Mr. Nadeem. Thank you very much. I'm a very capable host. Thank you very much for your time and introduction. And I'm very happy to be with all the experts here. You are well versed with their capabilities. You are well versed with their experience and background. They also have delivered their keynotes speeches as well. I would like to, however, quickly introduce them to all of you. Mr. Rizwan, who has on the extreme left side, Mr. Rizwan, who is representing Pharma Tracks, and he has educated us in that how Pharma Tracks and the track and trace technology is playing a very important role in the overall value chain of the pharmaceutical, from manufacturing facility to the patients. So thank you very much, Rizwan Sahab, for being here and delivering an excellent presentation. Then we have Saidur Rahman Sahab. He is also bringing a lot of experience, hands-on experience, and a lot of vision as well, that how he see that emerging technologies will play a very important role. So I really enjoyed his dovetailing or collaborating his manufacturing knowledge along with the requirements of Pharma 4.0. So I think it was very enlightening for me, Said Sahab. Thank you very much for that. Rashid Murid, a very good industry colleague. He had been my colleague as well. We have learned together and worked together for so many years. He is a pharmacist, and he also holds a degree in law. So he has a very unique combination of pharmacy and law, and he is in a very fine position to share his viewpoints that how regulatory challenges will play an important role, or will help us to understand that why certain type of technologies will be useful, and how technologies should be integrated in the overall system. So we will also learn from him. Mr. Zubair is also here. He is head of the technical operations. So I think we have two experts from the manufacturing side, Saidur Rahman Sahab and Zubair Sahab. So thank you very much, everybody, Said Sahab, Rashid, and Zubair Sahab, and Rizwan Sahab. I think I thoroughly have enjoyed all the presentations, starting from track and trace, that how technology is going to be very important in the manufacturing sector, and pharmaceutical industry cannot stay isolated, so to say. The overall impact, whatever we have on the manufacturing or on the industry, will sooner or later, one way or other, is going to impact the pharmaceutical manufacturing as well.
And the most importantly, I think, the point that we all miss in the pharmaceutical industry is the one that Mr. Rizwan really touched upon in his initial slides, that almost 450,000 or almost 500,000 deaths. And that is the data, please Rizwan sir, correct me, that is the data of the USA. Yes. So we can easily imagine that almost 500,000 or 5 lakh deaths, they happen in a country which is considered to be the most advanced country by all means, and yes they are. USA is a country where the innovation starts, they are the innovator, originator, and 500,000 deaths because of medical errors of medication, error of surgeries, error of nurses, paramedical staff. So we can imagine कि हमारे यहाँ कितनी होती होंगी. Unfortunately, or so to say, fortunately, we do not have the data and we are not worried about it, or so to say. So it is a very serious issue. Patient safety, ultimately, whosoever is working in the healthcare system, a pharmacist, a manufacturing pharmacist, a retail pharmacist, a hospital pharmacist, or anybody in the regulatory sphere as well, we all are working for the patients. It has to be patient-centric. We work for the patient, we work for the safety of the patient. It has to be quality in every dose that we deliver, from our machines to pharmacies to hospital to every home. We could see that the Brazil is taking a lead, that every pill has a track and trace ability. Every pill can be traced, that who could be the user of this pill, which city, which neighborhood, which street, which home. So up to that extent. And why do we do that? It is all about patient safety and quality. So I think the fundamentally we will try to keep our discussion focused on that, how patient safety and the quality is or should be our real focus, whatever we are doing in the healthcare sector. So everybody, once again, thank you very much. Said sir, first question to you. How do you see that, you have given us a very good scenario of the pharma manufacturing. We learned about line clearance, e-logbox, clean rooms, and also e-batch records. We see that, we also know that in working in Pakistan, that where do we stand today as a pharmaceutical industry, not as pharma industry, but overall as an industry. We are still struggling with our efforts with automation and computerization. So how do you see from the manufacturing perspective, how ready we are to move towards Pharma 4.0, and where should we start? थैंक यू नदीम साहब, ये बहुत अहम सवाल है. नदीम साहब ने कहा कि हम कहाँ खड़े हैं और हम फार्मा 4 पे कैसे जा सकते हैं ना. तो देखिए, ये कोई चॉइस नहीं है. पहले तो ये बात समझ में, आवाज़ सही है, ये कोई चॉइस नहीं है कि जी हम ना करें तो ना करें. एट द एंड देखिए, आपको ग्रो करना है, आप रेगुलेट से एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है. अगर पर्टिकुलरली आप एक्सपोर्ट मार्केट में जाते हैं तो ये अब नॉर्म बनता जाएगा. तो इसमें मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर विल हो तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि हर वक्त मतलब कंपनीज में इन्वेस्टमेंट तो होती रहती है. तो अब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, ये आप लोगों को ट्रेन करें कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट हो वो फ्यूचरिस्टिक हो. जो नीड्स आपके हैं, हमने देखा, इसको आप आराम से कर सकते हैं, और इसमें एक साथ नहीं करना न हो सकता है. जो आप कर सकते हैं. और अब तो इतना आसान हो गया है, बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेस भी आ रहे हैं. पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती से कोई ऐसा नहीं आपको मिलेगा. इंडिया में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे सोल्यूशन दे रहे हैं. यूरोप वाले थोड़े महंगे, तो आप इसको ले सकते हो, लेना ही चाहिए हमें. जो 2-2, 3-3 मॉड्यूल ले लें और इसको आप ऑप्टिमाइज़ करें. इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, हो सकता है 4-5 साल हमें लग जाएंगे, जो भी कंपनी इसको सीरियस लेगी, लेकिन इंशाल्लाह एक स्टेज पे आ जाएगी. थैंक यू जी.
Thank you very much, Said Saab, for very crisp and accurate answer. रिजवान साहब, आपने बहुत वक्त गुजारा है ट्रैक एंड ट्रेस में, एंड यू रियली अंडरस्टैंड, आप हम सबसे ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं AI में, IoT में. आपको कैसे लगता है कि जो फार्मास्यूटिकल ट्रेसेबिलिटी एंड सप्लाई चेन में जो सप्लाई चेन की इंटेग्रिटी है, इसको शेप अप करने में और कंप्लायंस को अचीव करने में ट्रैक एंड ट्रेस का रोल कैसे कंपनीज अपने सिस्टम में एम्बेड कर सकती हैं? बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान या मैं जनरल लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करूँगा, वहाँ मेजर ये होता है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बाय सीनियर लीडरशिप या जनरल पॉपुलेस थोड़े से रिलक्टेंट और फेज्ड होते हैं. देयर इज़ फर्स्टली resistance to change, adoption, and then they adopt somehow, and then after adoption they enjoy the challenges. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो adopt करते हैं वो कहते हैं ये हमने किया है. तो so it is a change management is a difficult and long and tedious process. The most important is ROI. So you have to calculate in terms of what money it's going to earn, the capex, and most importantly against the capex the change, the culture change, adoption and usage of that technology. So track and trace, putting barcode, serialization and aggregation just because a regulator said and just because you have to export into that region, or you want to do it to achieve patient safety and patient centricity. This requires vision, this requires investment, and most importantly top leadership vision, so that this can be translated on to the middle management and to the floor level. So the whole world has adopted. In fact, very recently even Afghanistan issued a guideline to it. So Sri Lanka has made it mandatory. Sri Lanka is one of those countries who actually at one point in time banned pharmaceutical imports from Pakistan. So now it is about you want to earn dollars, you want to keep your market share in terms of export, and at the same time your product is important, its quality is important, but the data quality along your product is more important now. That also gives you an opportunity to go into more developed markets just by leapfrogging and capitalizing on digital initiatives that you can do. There is an opportunity in herbal, there is an opportunity in nutraceutical, in even the first world developing markets. Pakistan has the right products, you just comply with the data regulations and you can enter those markets. So there's money to be made. There is priorities on patient safety to be corrected. और मैं उसमें मिसाल यही दूंगा कि एक ज़माने में Kodak was the first company to invent digital camera, और Kodak ने लालच किया कि हमारा तो कंज्यूमेबल बिजनेस है, फिल्म बिकती है, मेरा उसका प्रिंटिंग लैब शॉप के केमिकल्स बिकते हैं, तो हमारा काम चलता रहता है. तो किसी और ने वो डिजिटल कैमरा की इन्वेंशन को कमा लिया और Kodak आज वो कुछ भी नहीं करती. नोकिया का CEO तकरीबन रोया एक फोरम पे. सो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से आप दूर नहीं रह सकते. जो जल्दी करेंगे अडॉप्ट वो जल्दी आगे जाए. बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दी हैं. ये बहुत पॉपुलर और केस स्टडी एग्जांपल हैं पूरी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड वगैरह में इन्हीं केस स्टडीज़ को पढ़ाया जाता है, जिसमें एक नोकिया एग्जांपल है, इसमें Kodak एक एग्जांपल है. ये अपने एरिया में ये इनोवेटर भी थे, ये लीड भी करते थे, और इन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि वो एक दिन ऑब्सलीट हो जाएंगे. तो ये वो कॉस्ट है जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करने की कॉस्ट है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एम्फेसिस दैट व्हाई वी शुड बी adopting technology faster than anything else. राशिद मुरीद, आप हेड ऑफ चेम्बर्स हैं सेपल एंड को के, विद अ यूनिक बैकग्राउंड. आप एक फार्मासिस्ट भी हैं और रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग भी आपका बहुत अच्छा है. हाउ डू यू सी के इस वक्त एक तो रेगुलेटरी फ्रेम में पाकिस्तान के फ्रेम में चैलेंजेस हैं, बट पाकिस्तान से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि फार्मा इंडस्ट्री को अब ग्लोबल सोचना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की सर्वाइवल इसमें है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बल्कि कंपनीज़ की सर्वाइवल भी इसमें है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं. तो मैं इसका फर्म बिलीवर हूं कि हमारे तमाम सिस्टम्स के जो फैसले हम आज करते हैं वो ग्लोबल थॉट के साथ स्टार्ट होने चाहिए. यहाँ क्या होता है या साथ वाली कंपनी में क्या होता है, अगर हमने अपनी सोच को यहाँ तक महदूद रखा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फिर
मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर मैं साथ वाली कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को एज एन इंडिविजुअल और अपनी कंपनी को टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, अमेरिका, शिकागो, वहाँ की कंपनियों से अगर एज ए प्रोफेशनल और एज ए कंपनी कंपेयर नहीं करते और अपने आप को तैयार नहीं करते, तो बेसिकली हम कोडेक और नोकिया वाले रास्ते पे चल रहे हैं। तो राशिद साहब, आपको कैसा लगता है कि जो रेगुलेटरी पाकिस्तान का फ्रेमवर्क है उसमें बड़े चैलेंजेस क्या हैं, और क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा फ्रॉम द रेगुलेटर ड्रैप पॉइंट ऑफ व्यू और रेगुलेटरी कंप्लायंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें अब क्या लगता है कि डिजिटलाइजेशन एक दिक्कत होगी, एक मुश्किल होगी, या आसानियाँ पैदा करेगी? Okay. So, thank you, Nadeem Sahab. I'm actually still wondering and still waiting my 3G to be functional even at today, but still waiting, we all, and we are talking about the digital health and digital disruption and AI in Pakistan. So the shift of AI and AI power tools in digital health system, I mean, it's insane in last couple of years across the globe, even in Pakistan, in digital health system. And if we see the regulation perspective from the government of Pakistan, the focus on strategic implementation of AI powered tools for growth, modernization, it is imperative to have regulations that actually incentivize the investment, especially in pharmaceutical industry and in healthcare and hospital industry, and also have the system like environment that can adopt the digital system and AI and machine learning and algorithms here in Pakistan. For that, the environment, as I mentioned, and second is to educate peoples. Here we see in Pakistan a lot of potential across the young peoples. They are pretty much aware, as in US or India or China, Pakistani peoples have the potential of AI using and all, and the people have education. And third one is policy framework and regulations. So unfortunately, this part is missing from the government perspective. I can tell you the first digital Pakistan policy was framed first time back in 2018 in the era of Imran Khan, and subsequently the AI National Consultation Draft Guidelines was issued by this regime back in 2022. But still, I'm wondering, no regulation still passed by any of the assembly or the provincial assembly to actually enable AI implementation here in Pakistan, specifically in healthcare sectors. So this is very unfortunate. So as far as the compliances from the global perspective and in the draft perspective, I can share 3 examples with you, Nadeem Sahab. We receive at times observation and queries internationally and even in Pakistan about the regulations of online pharmacies, about the regulations of telemedicines, about the regulations of AI, about the regulations of softwares in the medical devices and the robotic surgery. But unfortunately, we don't any regulation from the draft perspective. And if we talk about the draft people, do you have any regulation? Yes, we have rules, we have regulation, but with the outdated, the 1976 Act, we cannot, support to the new technology and the new AI tools here in Pakistan. So this is very important. And the third thing is that I want to mention here about the global perspective. See, if we, see the government perspective or the draft perspective to support pharmaceutical industry to achieve Pharma 4.0,
and which is the fourth revolution in all sectors in Pakistan and across the globe. We cannot achieve this if we totally dependent on the government and government framework and policy framework. So we should focus on, as Nadeem sir you mentioned in initial your presentation, ICH guidelines, as Saeed Saab has mentioned about the PICS guidelines and the automation and their machine learning, so and so on. So we have to adopt what international perspective is and how we can build in our system to achieve export market and to get the export market business by built in your system. And also the most important from this platform, I think the message should be given to the federal government to have some policy framework to support pharmaceutical industry and healthcare sectors. I have been I can share the example with you. I have been with the case of robotic surgery that controlled by a satellite here in Pakistan, and Shifa Hospital in Aga Khan is in process of buying this system. And they were the opinion just to get first opinion from the DRAP, but the DRAP was the view we don't have any regulations to control these kind of big capital machineries, and also so how to monitors and how to use for this complex surgeries here in Pakistan. So this is very unfortunate part, but the only thing is the only way forward is to adopt the global guidelines and to in your pharmaceutical sectors and to get the maximum export business. Thank you Nadeem sir. राशिद बहुत शुक्रिया आपका, वेरी 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 इंटरेस्टिंग. आप सब लोग चूँकि बहुत इमर्जिंग लीडर बैठे हुए हैं अपने अपने इंडस्ट्री में, अपने अपने करियर में, एंड यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपके माइंड में कम से कम जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनसे हम ये मैसेज लेके जाएं कि हमें आगे अपनी इंडस्ट्री को लीड कैसे करना है. आपने रोबोटिक की बात की, मुझे इंटरेस्टिंग याद आया, केस याद आ गया. जस्ट टू मेक यू फील दैट कि दुनिया इस वक्त कहाँ सोच रही है और क्या हमें अपने आप को रीथिंक करने की ज़रूरत है. एक केस स्टडी था कि स्पेस स्टेशन है और स्पेस स्टेशन में बहुत सारे लोग, आपको पता है, जो स्पेसशिप जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप होता है, 5, 6, 7 लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं और वो उस स्पेस शटल में या उसमें स्पेस में उसमें टाइम स्पेंड करते हैं टुगेदर फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स की कोई चीज़ चुराई है. ये केस स्टडी है जो कि लोग कैसे सोचते हैं. एंड देयर वाज अ डिबेट कि उसकी जो FIR है वो कहाँ लॉन्च की जाएगी. दैट्स अ सीरियस थिंग, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि दुनिया के इस वक्त जो इमेजिनेशन का लेवल है वो किस तरह मुख्तलिफ है उससे जिस पे हम इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं. तो अगेन आपको मिसाल देने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें अपने जहनों को खोलना है एज एन इंडिविजुअल, एज अ नेशन, एज अ प्रोफेशनल. थैंक यू वेरी मच राशिद फॉर शेयरिंग द एग्जांपल. हमारे साथ ज़ुबैर साहब हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो डायरेक्टर प्लांट ऑपरेशन है मार्टिन डो के. ज़ुबैर साहब, आप ये बताइएगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे हम सब बात कर रहे हैं, हम सब वाकिफ़ भी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI के टूल्स हैं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IIoT है, और फिर एक बहुत सारा डेटा क्रिएट होगा और उस डेटे को फिर हम किसी न किसी एल्गोरिदम से या AI के टूल की मदद से, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 मिलियन टैबलेट्स प्रोड्यूस की हैं और रोज़ाना 5 मिलियन की हैं, तो लेट्स से आफ्टर 1 मंथ हमने उस डेटा को एनालाइज किया है कि उसमें से कितनी जो है वो गुड वंस थी, कितनी बैड वंस थी, या वेट वेरिएशन उनमें कितना था, या उनमें थिकनेस वेरिएशन कितनी थी, मे बी डे शिफ्ट में कितनी वेरिएशन है, नाइट शिफ्ट में, वन ऑपरेटर की वेरिएशन टू द अदर ऑपरेटर, किसी एक कंपनी के रॉ मटेरियल, एक कंपनी के एक्सीपिएंट एंड दूसरी कंपनी के एक्सीपिएंट में कितनी वेरिएशन थी. ये सारा डेटा है. ये डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे कुछ देर पहले रिजवान साहब ने बताया कि डेटा रिच एंड इंफॉर्मेशन पुअर और काइंड ऑफ पुअर इंफॉर्मेशन, कि वो डेटा का एक अंबार है लेकिन हमारे लिए यूज़लेस है. तो फिर हम उस यूज़लेस
चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे लोग क्यों रखे हुए हैं कि जो दिन रात कापियाँ भरते रहते हैं। तो हमें ऐसे सिस्टम को इवॉल्व करना है। ज़ुबैर साहब, आपसे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो लोग हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो और साइंस के ग्रेजुएट हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक पूरी वर्कफोर्स है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है, क्या आपको लगता है कि उनके ट्रेनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या यूनिवर्सिटी के साथ कुछ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि हम अपने करिकुलम को रीडू या रीथिंक कर सकें? क्या कंपनीज़ अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स को इस तरह से इवॉल्व करें कि हम उन लोगों को इन नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे बात कर सकें? चूँकि फार्मेसी या साइंस ग्रेजुएट बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन लेके इंडस्ट्री में एंटर होता है और जिन टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग हैं। तो हाउ डू यू सी ज़ुबैर साहब कि हम अपने वर्क फोर्स को कैसे अपग्रेड करेंगे टू कोप अप विद दीज टेक्नोलॉजीज़? थैंक यू नदीम साहब, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। तो देखें, इसमें हमने जो बात की अभी फार्मा 4.0 की और डिजिटलाइजेशन की, इनोवेशन की, इंटीग्रेशन की, तो अब इसमें ये है कि जैसे पाकिस्तान, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम इसमें बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं अभी, ठीक है ना। अब लेकिन मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, जो स्पेशली नदीम साहब ने कहा कि हम अपने वर्कफोर्स को कैसे इस पर लाएं। ये देखें, कल्चर की बात होती है, ठीक है ना। पहले भी कुछ स्पीकर्स ने बात की कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपनी सोसाइटी में, विद इन आवर सेल्फ हमें ये कल्चर डेवलप करना चाहिए कि हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ऑटोमेशन को यूज़ करें, डिजिटलाइजेशन को यूज़ करें। मैं अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो आप देखें, वो फ़ोन जो पहले होता था सेल फ़ोन बटन वाला, अब भी शायद कहीं पर आप देखते हो, कॉल उस पर भी हो जाती है, बात हो जाती है, लेकिन आप और बेनिफिट्स नहीं ले पाते। आप यू कैन नॉट यूज़ व्हाट्सएप, यू कैन नॉट यूज़ ईमेल्स, सोशल मीडिया, मैनी अदर थिंग्स, ई कॉमर्स, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दैट एनालॉग फ़ोन एंड द स्मार्टफोन्स इज़ द डिजिटलाइजेशन, इंटीग्रेशन, इनोवेशन, ऑल दैट। तो हम अपनी वर्कफोर्स को ट्रेनिंग दें उन चीज़ों पे जो हमें अपने प्रोसेसेस डिजिटलाइज करने के लिए ज़रूरी है, एक कल्चर बनाएं। इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। तो उसके साथ जो एक चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने प्रोसेसेस को स्टेप वाइज अपग्रेड करें फॉर डिजिटलाइजेशन। जिस तरह सईदुर रहमान साहब ने भी कहा अपनी प्रेजेंटेशन में कि टेक स्मॉल थिंग्स फर्स्ट, स्मॉल स्टेप्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पास देखें कि 2025 के कैपेक्स में आप कौन सी वो मशीनें सेलेक्ट करें जो अभी एनालॉग प्रोसेस पे हैं, जिसको आप मैनुअली ऑपरेट करते हैं, नॉब से घुमाते हैं, उसको आप HMI लगा दें उस पर, जो विच इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। आप उनके किन फीचर्स को डिजिटलाइज कर सकते हैं विथ अ लो बजट। तो आप इस तरह की चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और उनको डिजिटलाइज करें। और जब आप उनको एक दफ़ा डिजिटलाइज करेंगे, फिर उसके बाद OIT आएगा, IoT आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आप उनको कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट किया किसी सर्वर के साथ तो आपको डेटा मिलेगा, और वो डेटा जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आएगा। आपको अपने ब्रेकडाउन्स पता चलेंगे, आपको अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स पता चलेंगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, और क्वालिटी और कंप्लायंस भी आपकी बेहतर होगी। तो जो हमारी टीम है वहाँ काम करते हैं मैनेजमेंट स्टाफ या वर्कर्स, उनको हम उस कल्चर में डे 1 से स्क्रैच से उनको इन्वॉल्व करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, कल्चर बनाएंगे, पोस्टर्स वगैरह डिस्प्ले करेंगे। तो ये एक तरीका है हमारे जैसे कंट्री में डिजिटलाइजेशन पे जाने का, कि हम छोटी चीज़ों से शुरू करें, डे 1 से लोगों को इन्वॉल्व करें, ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करें। सो दिस वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, आई थिंक। नदीम साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी शामिल है।
some very good suggestions. रिजवान साहब, I hope के बस तमाम कंपनीज अपनी अपनी जगह पे ये सोच रही हैं कि वो AI के टूल्स को या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करें. आपसे हमें रहनुमाई ये चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म विजन अगर कोई कंपनी क्रिएट करना चाहती है टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन या सो टू से टूवर्ड्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और फार्मा 4.0, तो वो एक बहुत लंबा जर्नी है जैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन में किया है. तो वो क्या बेबी स्टेप्स या स्मॉल स्केलेबल स्टेप्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म विजन कैसे डेवलप किया जाए, तो एक ट्रेडिशनल कंपनी के लिए आपका क्या एडवाइस होगा? एक तो मुस्तकबिल के जितने भी प्रोक्योरमेंट डिसीजन है, कैपेक्स डिसीजन है, उसमें डिसीजन क्राइटेरिया में कोशिश करें कि डेटा एक्विजिशन आपके पास वो वाले मॉड्यूल्स अवेलेबल हों ताकि लेटर आप अपने सिस्टम जब अवेलेबल होंगे, क्योंकि कैपेक्स इज़ लॉन्ग टर्म, वो 20 साल 30 साल तक आपका रहेगा, तो उसमें डेटा एक्विजिशन इंटरफेसेस में आप इन्वेस्ट करें. दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पे फूड में, फार्मा में भी चंद लोग सोच रहे हैं डेवलप एन इनोवेशन फंक्शन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. एक डिपार्टमेंट बनाएं जो इनोवेशन पे काम करे, वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम करेगा, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन पे भी काम करेगा, उसका काम होगा, उसके लिए बजट भी अवेलेबल होंगे और वो क्रॉस फंक्शनल लोगों के साथ मिलके काम करें. थर्डली, आई वुड से ऑन द विजनरी आप सी लेवल पे पुट टुगेदर अ टाइम, अ विजन कि ये सब कुछ आपको करना है और क्यों करना है. उसको अलाइन कर लें अपनी एक्सपोर्ट मार्केट में ताकि देयर इज फाइनेंशियल इंसेंटिव सो यू हैव मोर पेन टुवर्ड्स इट, वरना दिन में घंटे तो उतना ही है. तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए. दूसरा, आपके जो भी पेपर प्रोसेसेस हैं उनको डिजिटाइज कर लीजिए, उनका डेटा एक्विजिशन उसमें बहुत आसान तरीके, आप गूगल फॉर्म्स से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड देन डेटा क्वालिटी, कलेक्टिंग डेटा अक्सर आज भी फर्स्ट नेम सेकंड नेम होता है, फ़ोन नंबर की जगह ईमेल होता है, सब कुछ इकट्ठा होता है. हमारे पास डेटा आता है लोगों को ईमेल्स भेजने का, वो 50% क्वालिटी का नहीं होता, फिर हम दोबारा बनाते हैं. सो डेटा क्वालिटी अभी से शुरू कर दें, भले आपको 10 साल बाद यूज़ करना है. टेम्पलेट्स अपने इम्प्रूव कर लें क्योंकि द डेटा शुड बी कैटेगराइज्ड वेल, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फ्रेमवर्क अवेलेबल है. देन फोकस ऑन डेटा इंटेग्रिटी. सो जो डेटा लिखा जा रहा है उसको कैप्चर कर लें डिजिटली जब कैप्चर कर रहे हैं तो एट्रीब्यूटेबल कर लें और उसमें ह्यूमन बीइंग को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके सेंसर्स, IoT उस पर ले जाएं. सो एज सून एज यू हैव क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ डेटा, AI will start doing, it will replace people. But when we say replace, तो बहुत सारे आज हमारे ऑडियंस में जवानान हैं और हम आपकी तरफ अभी क्वेश्चंस के लिए आएंगे और आपको उनको आंसर करेंगे, लेकिन उसमें रिप्लेस से मुराद ये कि वो आपका लेबर वर्क, इंटेंसिव डेटा एंट्रीज, उसको रिड्यूस कर देगा, वो आपको अलाउ करेगा कि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कर सकें. एक्सीलेंट. आई थिंक आपने बड़ी ख़तरनाक बात की कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बीइंग को ख़त्म करते जाएं. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है कि मेरे पास रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा साल नहीं है, लेकिन जो नौजवान लोग हैं उनके लिए बड़ी ख़तरनाक बात है. तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इलॉन मस्क से किसी ने पूछा था रिसेंटली कि क्या ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम ChatGPT भी बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, जेमिनी यूज़ करते होंगे, तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या ये AI जो है हमें एलिमिनेट या रिप्लेस कर देगी क्या? तो उसने कहा कि नो, बट इफ़ यू डू नॉट लर्न इट, यस. तो इसका मतलब है कि हम AI को अपने लिए थ्रेट के तौर पे ना देखें, अपनी एक्सटेंशन के तौर पे देखें, अपनी ऑगमेंटेशन के तौर पे अगर देखें. अगर इस कैपेबिलिटी, इस नॉलेज को अगर हमने अपने नॉलेज का हिस्सा बना लिया तो ये हमें रिप्लेस नहीं करेगी. लेकिन अगर हमने इससे बॉयकॉट रखा तो ये डेफिनेटली हम सबको रिप्लेस करेगी. और जो रिजवान साहब ने खौफनाक सूरत हाल पेश की कि ये ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करेगा, तो ये बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. सईद साहब, एक दफ़ा फिर आपकी तवज्जो चाहिए और आपकी एक्सपर्टीज़ चाहिए. आपको लगता है कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले बहुत साइलोज में हैं, जैसे सब हर इंडस्ट्री होती है, हर इंडस्ट्री वाले समझते हैं कि वो सब कुछ समझते हैं और वो सब कुछ जानते हैं. आपको कहीं लगता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स को अपने इस ख्याल को झटकना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है और मुझे चूँकि 20 साल हो गए हैं तो मुझे अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हो चुका हूँ?
क्या फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स को किसी और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत लगती है आपको? जी थैंक यू नदीम साहब, ये बहुत हाँ वाकई हम साइलो में काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसका मैं आपको एग्जांपल लूँ, हम सारे फार्मा प्रोफेशनल है, इवन इस वक्त पाकिस्तान में कोई अच्छा वर्किंग ग्रुप नहीं है, जो कि राशिद भी बैठे हुए हैं, कि किसी रेगुलेशंस को इंटरप्रिटेशन पे काम कर सके, लोगों को समझा सके। या इंटरनेशनल फोरम आप देखें, ISP है, पाकिस्तान में उसका चैप्टर भी नहीं है, ठीक है। PDA में अभी भी मैं आपको बताऊं, आप अभी सर्च करें, पाकिस्तान से टोटल 3 से 4 लोग हैं उसमें, PDA में, पेरेंटल ड्रग एसोसिएशन में। उसकी वजह यह है कि हम अपने ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं करते और हर तरफ हम अपने एम्प्लॉयर को देखते हैं कि बस यही मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें जितने सारे प्रोफेशनल बैठे हैं ना, हम सबकी जिम्मेदारी है, ख़ुद की डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी है। वो 70-20-10 रूल है ना, कि 70% एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, 20% उसके बॉस की जिम्मेदारी है, 10% कंपनी की। तो मेरे जितने सारे कुलीग बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे नदीम साहब ने कहा ना कि AI विल नॉट रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग, बट द ह्यूमन बीइंग विद AI विल रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग विदाउट AI। तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको ये जो फोरम्स होते हैं ये पेड होते हैं, तो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना भी होगा। आप लाजमी ISP वगैरह, अगर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, आप लाजमी ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती, $250 सालाना, लेकिन आपकी बहुत बेतहाशा लर्निंग। PDA के शाम के वक्त हमारी वो होती है नईम साहब, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप से, स्टरलाइजेशंस के, ऑप्टिकल इंस्पेक्शन के, तो अक्सर उसकी मीटिंग रात को 8-9 बजे होती है, और वो उसमें वो लोग बैठते हैं जो गाइडलाइंस लिखते हैं। तो अगर आप उनकी इंटरप्रिटेशन एक दफ़ा आपने समझ ली ना, यकीन करें आपको बहुत आसानी होती है फिर दूसरे को एक्सप्लेन करने में। तो वाकई हम साइलो में काम करते हैं, हमें इससे निकलना पड़ेगा। यहाँ हमारे खुद के भी ग्रुप हो, जो कि नई गाइडलाइन आई, चलो एक इंटरप्रिटेशन पे हुई, नए जो यंगस्टर आ रहे, क्योंकि फार्मेसी में भी एक मसला ये है, ये हम फार्मेसी काउंसिल वालों को लिख भी चुके हैं कि आप जो स्टफ हमें दे रहे हैं, या जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आ रही है, और फार्मा प्रोफेशन में तो उनको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है ना, जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स आते हैं, बहुत सारे जो नए ट्रेंड्स है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट, वैलिडेशन, ये बिल्कुल फार्मेसी ग्रेजुएट को आती नहीं। तो इतना साइलो है, हमारे एकेडमी और इंडस्ट्रीज़ में भी इंटरेक्शन नहीं। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से ये मैसेज है कि हम सबको ये ख्याल करना चाहिए कि वी डोंट नो एनीथिंग, और हमारे जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो कल तक तो बहुत अहम था, आज के लिए नहीं है, और फिर टुमारो के लिए भी नहीं है, और हम दूसरे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करने में कतन कोई मुज़ायका नहीं है। एक्सीलेंट। आई थिंक राशिद साहब, आप ये बताइएगा कि सूरत हाल को बहुत इनकरेजिंग नहीं है कि हमारे जो ड्रग रेगुलेशन हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो अभी उनकी रेगुलेशन या उनकी अपनी लर्निंग लेवल वो अभी बहुत दूर है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज। और मेरा ख्याल ये हमेशा अच्छा होता है कि आप फ्यूचर की वक्त से पहले बात कर लें, तो यही अक्लमंदी होती है। एटलीस्ट हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं तो सब लोग कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इस चैलेंज को कैसे आप देखते हैं, और क्या आपका ड्रैब के लिए या नए फार्मासिस्ट के लिए, नए रेगुलेटर्स के लिए कोई मैसेज है? कि क्योंकि हम तो अब पूरी दुनिया में काम हो रहा है कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग पे। कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी, बैच डिस्पेंस होगा, ग्रेनुलेट होगा, कंप्रेस होगा, ब्लिस्टर होगा, और फिर कार्टनिंग होगी, और वो पेशेंट के पास डिस्पैच हो जाएगा। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होगा। इस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में लाइन क्लियरेंस कहाँ से आएगी, चूँकि तो बैच चेंज ही नहीं हो रहा है। इसमें लॉगबुक कौन नोट करेगा, किस वक्त नोट करेगा, ये सारे चैलेंजेस इस वक्त। यानी मेरा पॉइंट से बताने का ये है कि कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग एरा में क्या हमारी रेगुलेशन, हमारा रेगुलेटर तैयार है, और अगर तैयार नहीं है तो उसे क्या करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया सर। देखिए सर, ड्रैब के पर्सपेक्टिव से, सो वी हैव अराउंड 800 manufacturing units here in Pakistan, around 1300 manufacturer and importer license here in Pakistan, and more than 2000 directly and indirectly dealing with the healthcare sectors in terms of businesses. But
considering the jurisdiction and the enforcement from the provincial government or the federal government, we have only 14 to 15 federal drug inspectors, and we know, you know, their competency level as well. So the way forward is the IT professionals like Rizwan Saab, the manufacturing experts, business experts, they should sit with the government, with the DRAP. Normally हम ये देखते हैं US FDA है, EMA है, जापान है, TG है, वहाँ से लर्निंग होती है, उनके इंस्पेक्टर्स की जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है वो मैक्सिमम लेवल के ऊपर होती है, एट सीलिंग लेवल, और इंडस्ट्री उनसे लर्न कर रही होती है. बट हेयर इन पाकिस्तान द पर्सपेक्टिव इज़ टोटली डिफरेंट. इंडस्ट्री का जो नॉलेज है वो ड्रैप के नॉलेज से कई गुना ज़्यादा है. सो द वे फॉरवर्ड इज़ कि ड्रैप के साथ, इंडस्ट्री के साथ और जो बिज़नेस आपके स्टेक होल्डर उनकी कोलैबोरेशन हो और स्टेक कंसल्टेटिव मीटिंग्स हों, न्यू रेगुलेशंस के ऊपर, रूल्स के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर, ताकि ड्रैप को आप आगे लेके चलें. अनफॉर्चुनेटली so this is the only way, because for export or you know the compliances or you know the adaptation of international guidelines or you know digital tools, it only comes from the DRAP perspective and the Ministry of Health and Ministry of IT and Technology, Information and Technology. And the most important thing is, as Nadeem Sahab, you are going to retire in next few years time, my message is to youth, pharmaceutical industry or hospital or any business, they can only grow exponentially with collaboration with IT professionals and software you know professionals. अगर हम इन लोगों के साथ collaborate नहीं करेंगे, हम redundant feel करेंगे. As I mentioned, you will be living in the dust. और the thing is कि जो young IT professionals हैं, जो नए software houses हैं, वो ज़्यादातर हम cheap services दे रहे हैं to you know the first world countries. Why not to you know the Pakistan IT sectors or pharmaceutical sector or the healthcare or hospital industry sectors? Probably हम connect नहीं कर पा रहे. जो हमारे software houses हैं, IT professional हैं, जो develop कर रहे हैं, उनकी भी जो services हैं वो the best हैं. अगर हम collaborate कर सकें अपनी pharmaceutical industry के साथ, probably वो एक बहुत बड़ा shift होगा हमारी industry के लिए in terms of export and also the compliances. So my message is कि sir, since the leadership team is here and the young professionals are here, we should support him and we should encourage to you know invite him to listen him कि भी आपके पास क्या proposals हैं, आप pharmaceutical industry में उसको apply करें और फिर आप उसको दोनों win-win situation और grow करें. And also you know in taking loop DRAP as well, because until unless के DRAP को आप नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए वो as ट्रैप में ही रहेंगे. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. Thank you for making me realize that I'm going to retire in few years. But I can tell you that I will try to learn AI and I will try to replace those who do not have learned AI. सही साहब ऐसा ही है? Excellent. So I still have a future, huh? Yes. So thank you very much. Thank you very much. Rizwan sir, before we move on to some questions from our colleagues as well, ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि हो सकता है. मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, तो आप हाउ डू यू सी इन्वेस्टमेंट वर्सेस बेनिफिट्स रेशियो ऑफ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन? टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का ROI बहुत फास्ट होता है और वो टिपिकली फॉर एग्जांपल एक ज़माने में वेबसाइट का या ईमेल्स फॉर एग्जांपल जितनी रोज़ाना मैं भेजता हूँ, मेरे ख्याल पिछले 4-5 दिन में इन्विटेशंस बहुत ज़्यादा थी. व्हाट्सएप को भी अगर मैं ईमेल समझूँ, किसी ज़माने में ख़त ही लिखते थे, तो मेरा तो 3 दिनों का खर्चा मिलियंस में होता. वो सब कुछ फ़ौरन अगले को मिल भी गया, उसने साथ के साथ रिस्पॉन्ड भी कर दिया, फीडबैक भी मिल गई. सो टेक्नोलॉजी का ROI बहुत फास्ट है और इट इम्प्रूव्स योर, इट मेक्स टाइम अवेलेबल फॉर यू टू डू वैल्यू ऑफ मनी जो आपको उसके वर्थ हैं. फॉर एग्जाम्पल अ वेरी सीनियर गाय टेकिंग क्लोज टू ₹500,000 इन पाकिस्तान, और वो बेचारा साइंस में. मैं इस्लामाबाद में, मेरा टेक्नोलॉजी सेंटर में एक रिसर्च सेंटर है, इट्स बेस्ड इन नस्ट. उसमें मेरे दोस्त हैं, वो साइबर सिक्योरिटी के दुनिया के टॉप 10 लोगों में से हैं. तो मैंने उनको एक दिन कॉल की कि मुझे लेट्स मीट, मैं आपके वाले कैंपस में हूँ, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में हूँ. तो उन्होंने कहा सॉरी मसरूफ़, मैं ना इन्विजिलेटर बना हुआ.
So he is checking around, कोई cheating तो नहीं कर रहा. So actually we need to automate those things और हमें हमारी leadership को उन technology में invest करें, अपना time buy करें और उस time को वहाँ invest करें जहाँ value of money है. As soon as you grow, as soon डिसीजन मेकर है, बिजनेस ओनर, अगर आप पास इंपॉर्टेंट डेटा होगा, यू कैन मेक डिसीजंस फास्टर, नॉट क्वार्टरली बेसिस, नॉट मंथली बेसिस, नॉट वीकली बेसिस, डेली. और उसमें से बहुत सारा तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना के दे देगा, बस आपने ओके दबाना है. सो दिस इन्वेस्टमेंट, इसका ROI किसी भी और के ROI, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि आपकी इंडस्ट्री में ROI कहाँ कंसिडर, लेकिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अगर किसी भी प्रोडक्ट का ROI 18 महीने से कम हो तो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है. और आपकी इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है सालों में होगा. ये हम नॉर्मली फार्मा इंडस्ट्री में 3 to 5 years, और अगर कैपेक्स पे करते हैं तो 3 to 5 years. टेक इन्वेस्टमेंट का 18 महीने से ज़्यादा बजट ROI नहीं होता, इससे कम ही होता. और फिर वो हमेशा के लिए आपके लिए अवेलेबल है. और उसने आपको जो टाइम बाय करके दिया है, आप सारे काम करें और उसके बाद गोल्फ खेलें. तो इसका मतलब है कि हम भी उन चंद मुल्कों की तरह 3 days a week और 4 days a week पे जा सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए शर्त मेहनत है. ठीक, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब और बाकी सब लोग. मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे काइंड ऑर्गेनाइजर्स हैं, वेरी कैपेबल ऑर्गेनाइजर, थैंक यू वेरी मच. अगर आपकी हेल्प से अगर हम कुछ क्वेश्चंस ले सकें. एवरीबॉडी इज़ इनकरेज. आपका सवाल बहुत सादा और बहुत बेसिक हो सकता है, प्लीज़ गो फॉर इट. हम सब लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं और मेरा ख्याल है कि यहीं से जुस्तजू शुरू होती है सीखने की. Whatever question you have, please raise your hand and we will be very happy to hear from you. We encourage, we have 2 people over there. Imran Sahab. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच, नाइस सेशन. मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली रिजवान साहब से है, क्योंकि रिजवान साहब ने ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था. सर आपसे सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप यू बीइंग इनटू बिजनेस, बीइंग इनटू ऑर्गेनाइजेशंस, आपने 2D बारकोड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं. जब तक 2D कोई डी कोड नहीं करेगा उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके बिजनेस है इतना बड़ा, कितने यूज़र्स आपके, कितने % यूज़र्स ऐसे हैं जो 2D को स्कैन कर रहे हैं और जो डाटा इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि जो सिस्टम से समझ लें एंड यूज़र, कितने % एंड यूज़र इस सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है. लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में मोस्टली जो कुछ भी होता है वो इन्फोर्स होता है, क्योंकि पॉपुलेशन का एक मेजर पोर्शन एजुकेटेड नहीं होता और टेक्नोलॉजी अवेयर नहीं होता. पाकिस्तान की भी यही सिचुएशन है. शहरों में इंटरनेट अवेलेबल है आजकल, तो वो भी परेशान कुन सिचुएशन है. सो बाय रेगुलेशन इफ़ इट बिकम्स मैंडेटरी एट द पॉइंट ऑफ सेल, जो कि ट्रू केस में होना चाहिए, तो हमें इसके ट्रू बेनिफिट्स मिलेंगे. सो पॉइंट ऑफ सेल पे अगर FBR की आपको रसीद आज मिल रही है, जिस पे FBR को ₹1 भी मिलता है, तो FBR इस शोबे में भी कर ले, ड्रैप में भी कर ले, उसका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, उसको विजिबिलिटी भी मिलेगी कि क्या बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, कौन से शाहदरा में खांसी का सिरप क्यों इतना ज़्यादा बिक रहा है, उसकी तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इससे किसी ने मूनशाइन बनानी है, क्यों कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस जो हैं वो KPK के इस रीजन में एक छोटे से गांव में इतने ज़्यादा बिक रहे हैं जो पूरे कराची में नहीं बिक रहे, क्या उससे किसी ने आइस बनानी है. सो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं. तो रेगुलेटर इसमें बहुत थोड़ा सा एफर्ट करे. It's very unfortunate, I would say, but at the same time, I would say there's an opportunity. US में भी ड्रग सप्लाई एंड सिक्योरिटी एक्ट आया और उसमें उन्होंने ब्लॉकचेन को यूज़ करना चाहा, तो US FDA के पास भी उसकी कोई रेलिवेंट एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया. उसमें IBM, वॉलमार्ट, मर्क और KPMG के इन सोल्यूशन को टेक्निकली IBM देखेगा, वॉलमार्ट देखेगा इसको ROI और किसको क्या क्या इंसेंटिवाइज करना है. मर्क मैन्युफैक्चर था और सो इन सब ने मिल के दे पुट टुगेदर अ सोल्यूशन, पोजीशन पेपर निकला. सो ऑल इफ़ वी डू टुगेदर, एडवांटेज मैन्युफैक्चर को भी मिलेगा क्योंकि वो तो इन्वेस्ट कर रहा है. पॉइंट ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल पे भी आना पड़ेगा. पॉइंट ऑफ सेल पे ही हमारे मोस्टली अगर उसको मैंडेटरी कर दें, तो जिस तरह सेल्स टैक्स कलेक्शन का है, अगर आप उसकी मैंडेटरी वेरिफिकेशन भी कर दें, जो कि अर्बन एरियाज़ में तो सब पे पॉसिबल है, आजकल रूरल में भी पॉसिबल है. सो कोई कमी नहीं है. इट्स जस्ट अबाउट वी ऑल पुट टुगेदर. इस कॉन्फ्रेंस में इनफैक्ट एंड पे हम लोग एक तहैया कर लेते हैं कि हम आज गुफ्तगू करके नहीं उठेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे. We put together a position paper, we do advocacy effort,
and write to them that we have already invested, we want patient to be safe. आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है, हम आपके लिए आसानी कर देते हैं, आप इन्वेस्ट ना करें, आपको ROI और अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम और भी हेल्प करेंगे. सो ये मेरी उसमें सजेशन है. लेकिन यू आर राइट कि इसके फ़ायदे उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक सब अडॉप्ट करें. लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़बरदस्ती होगा, हम लोग ज़बरदस्ती लाइन में लगते हैं. बहुत शुक्रिया रिजवान साहब और इमरान साहब के क्वेश्चन का. वी आल्सो हैव अ क्वेश्चन हियर ऑन दिस साइड. जस्ट प्लीज गो अहेड सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शाहिद आलम, एक्स हेड ऑफ इंजीनियरिंग गेट्स फार्मा. मेरे कुलीग बैठे हुए हैं सईद साहब. तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज सईद, यू नो कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि जी हम तैयार नहीं हैं. तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी कौम को पता चल जाए जी हम तैयार नहीं हैं तो वो तैयारी में लग जाएं ताकि वो जो गैप्स है उसको मिनिमाइज़ किया जाए. करंटली आवर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यू नो द कन्वेशनल, कुछ जो ग्रो कर रही हैं टॉप 10 में, वो कुछ इन्वेस्टमेंट, कोई मॉडर्नाइजेशन, कोई टेक्नोलॉजी, चाहे वो प्रोसेस साइड पे हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी साइड के ऊपर कर रही है. तो सही से मेरा क्वेश्चन है कि सईद, हाउ यू फील के जो कन्वेशनल हमारा फार्मा है वो अगर फार्मा 4.0 पे जाती है तो कितना उनको बेनिफिट होगा. जैसे हम कहते हैं कि जी अगर आप ऑपरेशनल एक्सेलेंस लेके आते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग लेके आते हैं, तो थंब रूल है कि 2 to 10% यू डेफिनेटली गेन समथिंग ओवर देयर. एक रेशो है, मतलब प्रैक्टिशनर ने या उस जो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे फूड हो, व्हेन द पीपल आर प्रोफेशनल्स, पीपल आर वर्किंग इन अ लीन मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, देन दे डेफिनेटली इंश्योर 2 to 10% प्रॉफिटेबिलिटी और द गेन. तो माय क्वेश्चन इज बेसिक कि अगर हम कन्वेशनल फार्मा से फार्मा 4.0 पे जाते हैं तो हम कितना गेन करेंगे, ताकि उसको इंटरेस्ट नज़र आए कि यार ये गेन है, इसमें हमें स्विच करना है, हमें लोगों को तैयार करना है, जो सारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा. थैंक यू. वेरी गुड. ये नहीं, तैयार नहीं है, मतलब मैं तो इस पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि ये टॉप 20 में है या टॉप 10 कंपनी में है. ये सारा गेम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वो कंपनी, वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा जो सबसे ज़्यादा फिट है. ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी टॉप 10 में हमेशा टॉप 10 में रहेगा, जो टॉप 30 में हो टॉप 30 में. आप अगर आज टॉप 30 में तो आप भी मेहनत करें, आगे आ सकते हैं. तो ये तो जहन में नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर सकते. हर बंदा कर सकता है. आपको इसकी तैयारी करनी होगी और अभी से अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह रिजल्ट लाजमी आएंगे. दूसरी बात जो आपने की, तो हमने प्रेजेंटेशन में भी कवर कर दिया कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. आपका डेटा इंटीग्रिटी बाय डिज़ाइन हो जाएगा, आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, आप टू स्पीड टू मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी ट्रेसेबिलिटी आपकी प्रोडक्ट की अच्छी हो जाएगी, आपकी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस मतलब अच्छा एक मोर देन एक्सपेक्टेशन से आपके एक्सीड करेंगे. ठीक है. और प्लस आपकी जो टाइमली रिलीज है, क्वालिटी कंट्रोल आपके अच्छे हो जाएंगे. तो बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं. थैंक यू. और अब एक चीज़ और सईद साहब के आपकी इजाज़त से ऐड कर दूं कि एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो अनइमेजिनेबल है, इमेंस है. हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश जैसी कंट्री, जो कि नाउ इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पली कंट्री इन द LMIC या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा 18 USFDA अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं और पता नहीं कितनी ज़्यादा जो ईमा हैं और UK MHRA अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं. तो इफ़ बांग्लादेश कैन हैव 18 USFDA एंड वी डू नॉट हैव एनी ऑफ देम, तो आप सोचें कि ये जो सिस्टम है जिनकी हमने बातें की हैं और एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है, ये सारा का सारा सिस्टम किए बगैर हम USFDA की तरफ नहीं जा सकेंगे. तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. बहुत शुक्रिया. कुछ और क्वेश्चंस प्लीज़ मैं इनकरेज करूँगा. यस जेंटलमैन. चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर आई टीच द कंप्यूटर साइंस मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट. अ बिग इशू इज द डेटा सेविंग. जी इसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रिजवान साहब प्लीज़. इंडस्ट्री में टिपिकल IoT डिवाइसेस नहीं यूज़ होते. उसमें कैटेगरी है जिसको बोलते हैं
इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी बिल्ट इन होती है, उसका एक स्टैंडर्ड है गैम 5 और गुड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, और वो साइबर सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल बिकॉज सारा प्लांट अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो समवन कैन कम इन, हैकर्स रशियन कोई हायर करेगा और पाकिस्तान का पूरा फैक्ट्रीज बंद कर देगा। तो येस, द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट एंड दे आर स्टैंडर्ड्स इन प्लेस जिनको कंप्लाई करके ही आप उन सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ कवर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम एकेडमिक फार्मासिस्ट। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे बेसिकली इस तरह की भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिसमें एकेडमिया और आपकी इंडस्ट्री का लाइजॉन हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकेडमिया के लोग सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री के लोग एकेडमिया से सीख सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रेश फार्मासिस्ट हैं वो बेसिकली आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट देयर कैरियर फ्रॉम रेगुलेटरी अफेयर्स, लेकिन उनको रेगुलेटरी के बारे में चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। बेसिकली सिर्फ उनको ये एक चार्म होता है कि हम रेगुलेटरी में आ जाएँ, रेगुलेटर्स की मतलब चीज़ों का पता ही नहीं होता है। तो ये भी इस पर भी वर्कआउट होना चाहिए ताकि एक इंडस्ट्री और अकेडमिया का एक हेल्दी लाइजॉन डेवलप हो सके और प्रोफेशनल्स की जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो ट्रेनिंग हो सके। इससे पहले कि ये सवाल मैं बाकियों से भी शेयर करूं, मैं अपना छोटा बिट शेयर करना चाहूँगा बिकॉज बहुत वक्त हो गया मुझे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री को एक प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं। बायर को क्या चाहिए ये तो सेलर को पता होना चाहिए। तो मेरा पहली रिक्वेस्ट ये होगी यूनिवर्सिटीज़ से कि प्लीज़ कोशिश करें कि अपने सिलेबस को रीथिंक करें, ये इंतहाई ज़रूरी है। हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, आई वुड यूज़ द वर्ड आउटडेटेड, ऑलमोस्ट ऑब्सलीट। हम जो चीज़ पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए है, इसलिए स्टूडेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी है। हम एकेडमिक और लिंकेजेस की बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं, बहुत अरसे से कोशिश भी करते रहे हैं, लेकिन समहो कामयाबी नहीं हुई। उसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों अपनी जगहों पे बहुत ज़्यादा स्टबन महसूस होते हैं। आई ऑल्सो हैव वर्कड विद यूनिवर्सिटीज़ विद एग्जैक्टली द सेम इंटेंशंस, बट आई केम टू नो दैट इट्स मोर ऑफ अ सेशन, इट्स मोर ऑफ अ फोटो सेशन। तो दोनों अपनी जगह पे चेंज होने को तैयार नहीं हैं। तो आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन ये जितने इंडिविजुअल हैं उनके ऊपर भी एक भारी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को जाने कि इंडस्ट्री को क्या प्रोडक्ट चाहिए, एंड इफ़ आई हैव दैट प्रोडक्ट देन ऑफ कोर्स आई कैन हैव अ बेटर प्राइस। इफ एनीथिंग फ्रॉम द पैनल वांट्स टू ऐड एनीथिंग प्लीज़। जी, ये सवाल बहुत अहम है बच्चे का। इसमें ना नदीम साहब की वजह से हमारी भी मल्टीपल यूनिवर्सिटी से बात हुई है। वो करिकुलम फार्मेसी काउंसिल से आता है, हमने लिख दिया, हमने कहा 24 साल मुझे आज तक कभी फार्मेसी काउंसिल का बंदा हमारे पास आया नहीं। ये नदीम साहब से भी पूछे, इनके पास भी नहीं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कितने फार्मासिस्ट के चाहिए। ने लिख के दिया कि भाई करिकुलम में ये भी डाल दो, ये वैलिडेशन, ये रेस QMS हमने लिख के दिया। आप देखें रेगुलेटरी साइंसेस तो बिल्कुल नहीं है उसमें। तो वो उन्होंने कहा जी हमने 5 साल कर दिया, फिर उसमें वो फार्मा मतलब वो मेडिसिन वो क्या कहते हैं उसको, मतलब हॉस्पिटल का ज़्यादा उसमें डाल दिया, जबकि हॉस्पिटल में इस वक्त 10% भी फार्मासिस्ट यूटिलाइज नहीं होते, 90-95% तो आते हैं ना। ये अलमिया है, बस हम भी कोशिश कर रहे हैं, अब भी कोशिश कर रहे हैं। हम तो जिस फोरम पे जाते हैं इस इशू को बहुत ज़ोर से उठाते हैं कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ काफ़ी स्टूडेंट बैठे थे। मैंने एक से पूछा आप क्या कर जी, मैं किसी ने कहा मैं इसमें PhD, एक बच्ची ने बोला मैंने विनोम में PhD किया है। तो मैंने कहा मुझे तो आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्या रखूँ। मैंने कहा आप में से कोई है जो ऑटोक्लेव में वैलिडेशन में PhD हो या ग्रेजुलेशन का हो या कोटिंग का PhD हो, हाथों हाथ ले लेंगे। एक भी बंदा नहीं था, क्योंकि वो जो दे रहे हैं पता नहीं कहाँ से उनको याद है कि इसमें PhD कर दो, तो वो सिर्फ मतलब लेक्चर्स के लिए या टीचिंग के लिए तो शायद उसकी यूज जो इवन हमारे फार्मा इंडस्ट्री में सब बैठे हुए हैं, हम में से कोई PhD डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो नीड ही हमारी अलग है, उनकी सप्लाई अलग आती है। आई कैन शेयर वन एग्जांपल विद यू बेटा। लास्ट ईयर हमारी फर्म में एक लॉ के स्टूडेंट इंटर्नशिप करने आए फॉर पीरियड ऑफ 1 मंथ, और उनकी इंटेंशन ये थी कि मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ जो मैं किसी अपने जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी है, उसके अंदर हम उसको सपोर्ट कर सकें। हमारी फार्मा में एक फार्मा ब्रिज सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, प्रॉपर्ली बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसमें रेगुलेटरी और जो SROs हैं, गाइडलाइंस हैं, वो वहाँ से फैच कर सकते हैं।
वो लड़का लास्ट ईयर के एंड में वो पास हुआ दिसंबर 2023 में, एंड उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया विद द नेम ऑफ लेक्सा। जितने भी पाकिस्तान के अंदर जजमेंट्स हैं स्पेशल ट्राइब्यूनल्स की, हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की, वी हैव डू सॉफ्टवेयर्स ऑफ पाकिस्तान लॉ साइट एंड अदर्स, उसने एक डिफरेंट इस तरीके से अडॉप्ट किया कि विद मिनिमम फ़ी एंड यू कैन फेच योर डिज़ायरेबल विद द नेम ऑफ एग्जैक्ट प्रपोजिशन, आप अपनी कोई भी जजमेंट आप फेच कर सकते हैं विद ओनली एजुकेशन ऑफ 3 years विद द बैकग्राउंड ऑफ लॉ। और आज वो बहुत सारी लॉ फर्म्स को वो अपना सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं और उसने जॉब नहीं की। कमिंग टू योर प्रोफेशन, फार्मेसी में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो जेनेरिक बेस्ड है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, ठीक है, हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी और पता नहीं कौन कौन सी फार्मेसीज हम पढ़ते हैं फार्मेसी कोर्स के अंदर, बट उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो फॉर यू इज़ जो गैप है इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अक्रॉस द ग्लोब इज़ IT, इज़ HR, is regulatory affairs, compliances in terms of new guidelines। इस तमाम प्रोफेशन में आपने ये देखना है कि आपको जॉब नहीं करनी, एकेडमिया आपका कोर्सेज और इंडस्ट्री का गैप बहुत ज़्यादा है, फॉरगेटेड। आप ये देखें कि आप ऐसा क्या वो चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त स्किल बेस्ड नॉलेज है आपके पास। ये ठीक है डिग्री है, डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, इफ़ यू आर डिग्री फ्रॉम IB और लर्न, कोई उसका फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस यू हैव स्किल्स, और स्किल्स के थ्रू आप किसी को भी आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सकते हैं। सो स्टार्ट विद नॉट फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव, स्टार्ट विद योर ओन बिजनेस, और पूरी कोशिश करें, 2 साल धक्के खाएं, पूरी कोशिश करें, कुछ ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप किसी को बेच सकेंगे और वहाँ से स्टार्ट होगा। बांग्लादेश और इंडिया के हम एग्जाम्पल देते हैं, चाइना की, वो एक्चुअली यही है। हमने कुछ कंट्रीज देखे हैं उसमें सिर्फ यही है कि नया जो न्यू ब्लड है वो सोचता है इस तरीके से, और हम ये सोचते हैं कि जॉब जो ठीक है 10-15 हज़ार की जॉब, और हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बड़ी कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक्सेप्ट फ्यू जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज बड़ी कन्वेंशनल इंडस्ट्री है। सो आपको वही QC, प्रोडक्शन, QA, वेदर यू लाइक और नॉट, बट आपके पास ऑप्शन यही है। सो द ओनली ऑप्शन इज़ कि आप जो ही आप फार्मेसी कंप्लीट कर रहे हो, आप ऐसा कोई आप अपनी स्किल डेवलप करें और आप उसमें चेस करें। जो हम डिजिटल हेल्थ के ऊपर और AI के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस अ फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। आप जितने भी देख लें मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर इक्विपमेंट्स देखें, सारे AI बेस्ड हैं। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग काइंड ऑफ थिंग। सो उस पर्सपेक्टिव से आप सोच के आप इसमें करेंगे तो फिर आपको एजुकेशन की, डिपेंडेंसी की, फार्मेसी काउंसिल्स की, इंडस्ट्री की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सो थिंक डिफरेंटली। थैंक यू। Director sir, please go ahead sir। जी शुक्रिया। असल में इंडस्ट्री के मामलात काफ़ी पुराने हम सबके इल्म में हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर है, और सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ ए डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर। तो इसके ऊपर ये अलग एक सब्जेक्ट है, लेकिन अब हम आ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट्स में बेतहाशा पोटेंशियल है, लेकिन कोई भी कंपनी अलावा चंद 2-3 कंपनियों के अलावा कोई भी एक्सपोर्ट्स में बड़ा सक्सेस नहीं ले पाया। अच्छा, जो फार्मास्यूटिकल्स की एक्सपोर्ट्स हैं उनके जो एंट्री बैरियर्स हैं वो इतने इंटरनेशनल लेवल पे इतने सख्त हैं कि हम आसान तरीक़ों से काम करने के इतने आदी हैं कि हम उन एंट्री बैरियर्स को क्रॉस करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंक्लूडिंग बायोइक्विवेलेंस वगैरह, वो हम लोकल बिल्कुल नहीं पूरी कर रहे, और या करना हमें बहुत कॉस्टली लग रहा है। जो सबसे बड़ी सक्सेस मॉडल, जो सक्सेस स्टोरी जो है वो हर्बियन की है, जिन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किया, और अब वो कनाडा भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वह USA भी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि ये एंट्री बैरियर जो हैं फूड सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिकल्स या हर्बल, इन सब के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं वो डॉक्यूमेंटेशन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर वो अब ऐसे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस अवेलेबल हैं कि उनको प्रॉपर्ली किया जाए तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके उसमें एक्सपोर्ट्स में जाया जा सकता है। इस वक्त जो तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि जो फूड सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल बनाने वाले हैं वो क्वालिफाइड प्रोडक्ट और क्वालिफाइड एक्सपोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर बनाएं तो लोकल में उनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो जाएगी और उनको एक्सपोर्ट्स में क्विकली एंट्री मिल जाएगी।
और जहाँ से वो रेवेन्यू कमाएंगे तो ग्रोथ तेज़ी से करेंगे, और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, पीपल ग्रो करेंगे, हर चीज़ में ग्रोथ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत, ये मेरी तजवीज़ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी वैल्यूएबल एडवाइस का। आई थिंक विद दैट final chance, if you have any question, raise your hand quickly, and we have 1 more minute to go. Okay, thank you very much Rizwan साहब, सईदुर रहमान साहब, राशिद मुरीद साहब and ज़ुबैर साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ का, आपके टाइम का, नॉलेज शेयरिंग का, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। आप सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 20-20 साल के तजर्बे को कोशिश की है कि चंद लम्हों में शेयर किया जाए। It's a great contribution to all the young people. So with that, I think we come to the end of the panel discussion. Over to you, lady. Thank you. That was a wonderful panel discussion. Thank you, Mr. Nadeem Rahmat, for moderating the session, and the all panelists. So now, information and knowledge has no end, but today's session is coming to an end finally. And what a wonderful day it was, I guess, with the information symphony which we have witnessed today. I must say it will add up to the whole pharmaceutical industry itself. And I'm really glad that I hosted this event. I'm really glad to be part of this event. And before we close, I would like Mr. Farhan Anis for the plaque ceremony. Mr. Farhan Anis is Vice President, E-Commerce Gateway Pakistan, and Director, Pharma Asia. Mr. Farhan Anis, please come on stage. Mr. Nadeem Rahmat, Chief Operating Officer, Farm Evo Private Limited. Mr. Nadeem, please. Mr. Nadeem Rahmat. Mr. Mohammad Zubair, Director, Plant Operation, Martin Dow Limited. Mr. Mohammad Zubair, please. Mr. Rashid Murid, Head of Chambers, Sepal & Co. Mr. Saidur Rahman, Director Technical Operations, AGP Limited. I can see Mr. Saidur Rahman has a huge fan following here. And Mr. Rizwan Bhutta, Chief Innovation Officer, Zork Pharmatex. Mr. Rizwan Bhutta. One of our keynote speaker was digitally live with us. He was Giulio Bolzonello, and on behalf of Giulio, I would like to invite Mr. Liaquat Javed Saab to take his plaque.